Hello students, welcome back. Today we are going to start part 5 of unit 3 digital documentation. In this unit we are going to learn about the tables, creating a table, operations on the table and printing. So first of all let us understand what is a table. A table is the intersection of rows and columns. Rows are the horizontal lines and columns are the vertical lines. Now let us understand how to create a table in LibreOffice Writer. There are three methods to create a table. The first method is to click on the table menu and then click on the option Insert Table. Second method is to click on the table icon present on the standard toolbar. And the third method is to use the shortcut key Ctrl plus F12. After using any of the method, specify the number of rows and columns in the dialog box which appears and then click on the Insert button. The table with the specified number of rows and columns will be inserted in the document. This is our LibreOffice Writer. The first option is to click on the table menu and then click on the Insert Table option. As soon as you click on the Insert Table option, dialog box will appear. If you want to change the name, you can change the name here. If you want to make changes in the number of columns or the rows, you can make changes from here. So in this case we have taken 4 columns and 2 rows. This is the style of the table. You can choose, its preview is coming at the right side. You can see and choose it accordingly. After choosing, click on Insert button. We have taken 4 columns and 2 rows. So this is our table. Second method is, this is our standard toolbar. So click on the Insert Table option from here and either you can specify the table from here, that is number of rows and columns, it will show in this form 7 into 7, or you can just click on this button to insert the table, or you can use the shortcut key Ctrl plus F12 which you can see on the screen just now. So these are the 3 options to insert the table in the document. Next we have is advantages of a table. Using tables, we can easily find out the information as the data is summarized in the form of columns. If our data is written in the form of paragraph and we want to search any particular data, then it would be difficult for us to find that data. But since in a table the data is arranged in the form of vertical and horizontal lines, by just glancing once at the table, we can find out the particular data. It makes the data more understandable and efficient. It provides detailed information in a grouped form. It also helps in the comparison of data easily. Suppose we want to compare the marks of 2 students of half yearly. Then we can easily compare by looking at their marks in the table. And the data which is arranged in the tables looks more clear and neat. Next we have is operations on a table. That is, what are the things which can be performed on a table. Inserting rows and columns, deleting rows and columns, splitting and merging cells. Splitting means dividing the cells and merging means combining the cells. Deleting a table, copying a table by copy and paste, and moving a table by cut and paste. Here we have this table which has 4 columns, 1, 2, 3, 4. The 4 columns are roll number, name, class and section, and 2 rows. 1 row contains the heading of all the columns and 1 row contains the data. So here in this case what we have to do is we want to insert one more row below this one because we want to enter the details of the second student. So the method is, first of all you have to place the cursor above who's below or above you want to just take a row, and then you have to click on the table menu and click on the insert option. Here you can see the 4 options: rows above, rows below, columns before, columns after. So we want to create a row. Click on rows below. Now you can see a second row has been created. Similarly, if we want to add one more column, so we can add the column also. Again go to table, insert and click column after. So it will create a column after section. You can also create a column before it. Our cursor is here at the section. Again go to table, insert, column, before. So it is going to insert a column before the section. Similarly, if I write here 2, that is we create our next row and we want to insert a row above it.
that is I want to insert a row between 1 and 2. So I have to place my cursor on the roll number 2 cell and then click on the table and then click on insert and then click on rows above. So you can see now there is a blank row between roll number 1 and 2 row. So this is the way you can insert a column above or before a particular column, or a row above or below a particular row. Column will be inserted either after or before. And the next thing is, we have done this thing with the help of the tables menu. This can be done by right clicking also. If I right click here, insertion or deletion basically. If I right click here, then it will show a context menu, and earlier we have done the insertion, so this insert option is available here also. Now I want to delete, so deletion, let us try from this side. Click on delete and we say suppose rows, so it will delete this row. Now I want to delete this column, so right click again, delete columns, so it will delete that column. So in the table menu you have both the options, insert as well as delete. You can insert from here. Even the whole table can be deleted with the help of delete table option. Like here, if I say delete table, so you can see here the whole table has been deleted. You click on the undo button, the whole table has come again. So this thing can be done by right clicking also and from the table menu also. The next was splitting and merging the cells. Splitting, as I told you, that splitting is dividing the cells. Suppose these are the two cells, they are already divided. I want to merge them. Merge means combining. So first of all you need to select the two cells, go to the table option and then click on merge cells. Now you can see this cell, earlier a line was there here, but now there is no line, and both the cells have been merged into one cell, and the data which was here in the class column, it has come below the name. Now we want to split it again, so go to table option again and click on split cells. It says split into, that is the number of cells in which you want to split, that you have to specify here. We want it into 2 cells splitting, so we'll make it as 2 only, and we want it vertically, so we'll just click on vertically and click on OK. Now you can see here the line has again come, but the data you have to just cut and paste from here, and you have to specify it here. You have to just specify it here. You can do using the cut and paste feature also. Okay, so next we have is, this was the merging and splitting. So now it has again split into 2 cells. You can see the line here which is coming. This means that the cell has splitted. Similarly, if you want to split or merge a table also, that also can be done. Like suppose here I have this table. Let me insert one more table here. Okay, let me just split this table only. This is my table. My cursor is here on roll number 1. Go to table and click on the split table option. So split table में we don't want any heading. Click on OK. तो now you can see कि जो आपकी headings थी वो अलग हो गई, और जो नीचे का आपका पार्ट था वहाँ से स्प्लिट हो गया. जहाँ से आप उसे स्प्लिट करोगे उस पॉइंट से वो स्प्लिट होगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा. सपोज माई कर्सर इज हेयर, मैंने अपने कर्सर को 2 पे रखा, एंड आई गो टू द टेबल एंड आई से स्प्लिट टेबल एंड वी से नो हेडिंग एंड क्लिक ऑन ओके. अब देखो ये पार्ट आपका स्प्लिट हो गया, मीन्स जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ से आपका टेबल स्प्लिट होना स्टार्ट होगा. ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़. देन अब हम इसे दोबारा से मर्ज करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपने देखा कि व्हेन द टेबल हैज स्प्लिटेड, तो 2 टेबल्स के बीच में एक पैराग्राफ का गैप आ गया. तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमूव दिस गैप. कैसे हटाएंगे? डिलीट की को प्रेस करेंगे. याद रखना है आपको, बैक स्पेस की से वर्क नहीं करेगा, डिलीट की आप प्रेस करेंगे. आपके कीबोर्ड पे होती है डिलीट की, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा. टेबल मर्ज टेबल, ऑल्दो वैसे भी वो मर्ज हो गया, बट अगर बड़ी टेबल होती है तो उसमें कभी इतना मर्ज नहीं हो पाता, तो आप मर्ज टेबल ऑप्शन को यूज कर सकते हो. ठीक है, अब जैसे इफ आई टेक वन मोर टेबल हियर, वी कैन नाउ लेट अस मेक यूज ऑफ दिस वन. पहले हम कर्सर को लाते हैं पोजीशन पे जहाँ पे आपको लेना है टेबल. सपोज हमने एक ये टेबल इंसर्ट किया. ठीक है, अब यहाँ पे आपका है, डिलीट की को प्रेस किया
अब देखो गैप कम हो गया। अब आपने इसको दोबारा प्रेस किया, अभी ये इससे ज्वाइन तो हो गया लेकिन प्रॉपरली मर्ज नहीं हुआ, तो आप टेबल पे गए, देन यू क्लिक ऑन मर्ज टेबल। अब ये पूरा मर्ज हो गया, दिख रहा है आपको। पहले ये इससे ज्वाइन हुआ था तो ये आपको ब्लैक लाइन यहाँ पे दिख रही थी, लेकिन जैसे ही ये मर्ज हुआ तो उस केस में बिल्कुल इसकी जो लाइन है वो उसमें ओवरराइट हो गई, ग्रीन हो गई बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मर्जिंग। तो हमने क्या सीखा, स्प्लिटिंग सेल्स, मर्जिंग सेल्स एंड स्प्लिटिंग टेबल एंड मर्जिंग टेबल। काम दोनों में सेम है, लेकिन एक बार हम सेल्स के साथ वी आर डूइंग दिस एंड एक बार हम टेबल के साथ कर रहे हैं, ठीक है। बाद इज योर कॉपिंग अ टेबल। तो आपको टेबल को कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, पहले आप टेबल को सिलेक्ट करो। ऐसे आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जाओगे गो टू द टेबल्स मेन्यू, क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑप्शन। पहले हम अपने कर्सर को कहीं पे रख लेते हैं, टेबल, सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन। सेलेक्ट हो गया आपका टेबल। नाउ आइदर यू कैन यूज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी, कंट्रोल सी, या फिर ये आपको टूल बार पे कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपने क्लिक किया। जहाँ पे आपको टेबल को पेस्ट करना है वहाँ पे आप अपने माउस पॉइंटर को लेकर आएंगे एंड देन क्लिक ऑन दिस पेस्ट ऑप्शन और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी। देखा आपने, सेम टू सेम आपका टेबल नीचे भी आ गया, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कॉपिंग अ टेबल। अब मान लीजिए मुझे इसे करना है मूविंग, तो मूविंग में मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट यू हैव टू डू इज कट एंड पेस्ट। तो इसको कट एंड पेस्ट करना है तो अगेन हमने इसको सेलेक्ट किया, देन गो टू टेबल, सेलेक्ट हम कर चुके हैं तो ये ऑप्शन आपको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ से आप डायरेक्ट जाओगे कट ऑप्शन पे, इस सिजर्स दिख रही हैं आपको, दिस इज़ द कट ऑप्शन एंड कंट्रोल प्लस एक्स इज़ द शॉर्टकट की। कट किया हमने, हम इसको यहाँ नीचे लेकर आना चाहते हैं, तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। तो कॉपी एंड पेस्ट एंड कट एंड पेस्ट का कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था। कट एंड पेस्ट में द थिंग और द ऑब्जेक्ट इज रिमूव फ्रॉम दैट प्लेस एंड पेस्टेड टू सम अदर प्लेस, वेयर एज इन कॉपी एंड पेस्ट आपका ओरिजिनल प्लेस पे भी रहता है और न्यू प्लेस पे भी रहता है। क्लियर है। तो ये दीज आर द ऑपरेशंस विच वी कैन डू ऑन अ टेबल। क्या क्या सीखा हमने, इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल्स, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल, कॉपिंग एंड मूविंग। क्लियर हो गया इतना। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए आपने एक टेबल बनाया, अब आप उसे प्रिंट करना चाहते हो। सो देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज गो टू द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन एंड द सेकेंड मेथड इज क्लिक ऑन द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी। either of them you can use, and there is one thing before printing a document which is known as print preview. View means to see, pre means before, to see before printing, that is print preview. The shortcut key is control plus shift plus O. What is the meaning of print preview? To view the document before printing, a user can check whether the document is prepared is needed as such indentation, borders etc. आपने एक डॉक्यूमेंट बना दी, कभी कभी जब आप उसे प्रिंट कर देते हो और उसकी हार्ड कॉपी देखते हो तो आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ रह गई। तो उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पे कैसे दिखती है, अगर आप उसे एक बार पहले देख लो तो वो आपके लिए बेटर हो जाता है कि ऑल द थिंग्स आर क्लियर और नॉट, स्पेलिंग्स आर करेक्ट और नॉट, टेबल ठीक से बनी है या नहीं, बॉर्डर ठीक से आए हैं या नहीं। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू एंड द शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो। तो दिस इज़ योर पेज, ठीक है। सब अब हमें प्रिंट करवाना है तो फाइल में जाके आप क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, शॉर्टकट की भी दिख रही है आपको, प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल शिफ्ट ओ एंड प्रिंट की कंट्रोल प्लस पी। किया हमने प्रिंट प्रीव्यू। अब ये देखो, दिस इज़ योर पेज, A4 साइज का आपका पेज है। जब आप प्रिंट करोगे तो इस तरह का आपका टेबल आएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखना चाहते हो तो यू कैन जूम इट लाइक दिस, जूम आउट करना चाहते हो तो यू कैन लाइक दिस। फिर आपको इसे प्रिंट करना है तो आप यहीं से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो और फाइल में जाके आप प्रिंट ऑप्शन पे वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया क्लोज प्रीव्यू। अब अगर हम इसको प्रिंट करें तो यहाँ से आपने प्रिंट करना है विद दिस ऑप्शन और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, एक तो आपके पास ये प्रीव्यू आ रहा है, चेक बॉक्स लगा हुआ है, पेजेस आपको दिखा रहा है 1 by 1। अभी हमने एक ही पेज बनाया, दैट इज़ वाई टोटल इज़ 1। मान लीजिए आपके 10 to 15 पेजेस होते तो यहाँ पे आपके
वही नंबर आता है। जैसे आपके 15 पेजेस हैं तो 15 आएगा, सबसे पहले वो फर्स्ट पेज पे है तो यहाँ पे आपको 1 दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर अटैच है उसका नेम आएगा, जिससे भी आप प्रिंट करना चाहते हो यू कैन सेलेक्ट दैट वन। और इसके बाद आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन कौन सा क्या चीज़ प्रिंट करना चाहते हो। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में देयर आर अराउंड 15 पेजेस एंड यू वांट टू प्रिंट ऑल द पेजेस, सो यू हैव टू क्लिक दिस ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू प्रिंट सम पर्टिकुलर पेजेस, लाइक आपको पूरे डॉक्यूमेंट में से सारे नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए, जैसे 3, 6 और आपने फिर लिया 7, 8, इस तरह से आपको चाहिए, तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर पेजेस का नंबर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दिया 1,3, लेकिन इन माई डॉक्यूमेंट ओनली 1 पेज इज देयर विच हैज सम टेक्स्ट ओवर इट, सो इट विल प्रिंट फर्स्ट पेज। और थर्ड पेज के लिए जब आप दोगे तो आपको ब्लैंक पेज दे देगा, क्योंकि आपने तो बनाया ही नहीं ना थर्ड पेज। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप बीच में से लेना चाहते हो लेकिन आपके कॉन्जिक्यूटिव पेजेस है, मीन्स लगातार हैं आपके पेजेस, तो आप उन्हें कैसे देंगे। जैसे कि मान लीजिए 15 पेजेस के डॉक्यूमेंट में आपको पेज 6 to 10 की रिक्वायरमेंट है, सो यू कैन गिव लाइक दिस 6-10। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज इवन पेजेस, अगर आपको चाहिए तो 2, 4, 6, 8 इस तरह के आपको पेजेस देगा। ऑड पेजेस आप 1, 3, 5, 7 इस तरह से आपको देगा। और सिलेक्शन तब होता है कि जब आपके पास जो जहाँ पे आपका कर्सर है डॉक्यूमेंट में वो आपको पेज चाहिए एज अ प्रिंट आउट, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। देन आपका है नंबर ऑफ कॉपीज। कभी कभी ऐसा होता है लाइक वी हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर फॉर द स्टूडेंट्स एंड वन क्लास हैज अराउंड सपोज 35 स्टूडेंट्स, सो वी नीड 35 कॉपीज, सो इन दिस केस वी विल स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज एज 35। ओके, देन पेपर साइज इज देयर, ओरिएंटेशन इज देयर, कैसा चाहिए आपको, पेजेस पर शीट इज देयर। दिस वी विल लर्न प्रिंट के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अभी आपको मेन इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। ओके, प्रिंटिंग ऑल पेजेस, सिंगल एंड मल्टीपल पेजेस, ये हमने अभी डिस्कस किया। अगर हमें सारे पेजेस प्रिंट कराने हैं तो वी हैव टू चूज द ऑप्शन ऑल पेजेस। सिंगल पेज प्रिंट कराना है तो पेजेस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और नॉन कॉन्जिक्यूटिव पेजेस के लिए आपको कॉमा पुट करके यू हैव टू स्पेसिफाई द पेज नंबर्स, एंड फॉर कॉन्जिक्यूटिव पेजेस आपको इस तरह से रेंज देनी है, पहले आपका फर्स्ट पेज आएगा और हाइफन डाल के आपका लास्ट पेज आएगा। और सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट या जितना जो पेज आपने सेलेक्ट किया दैट यू वांट टू प्रिंट, सो यू हैव टू click on the selection option. With this, the part 5 of this chapter is complete. Only one last part is left, which is the mail merge, that we'll cover in the next video. Now here comes the assignment. First question says write the shortcut keys for the following: creating a table, print and print preview. This is very easy. It is there in the video. Check it once. Second question says what are the advantages of creating a table? Explain. This also we have discussed. And third question is explain the different ways of printing. This we have discussed just now. So these are the 3 questions based on this for the assignment. Next we have is practical work. So what are the practical things you can do is, first of all you have to create a timetable using the tables option. तो what you can do is, लास्ट ईयर का आपके पास होगा या अभी का भी आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू टेक मंडे टू सैटरडे 6 days अ वीक। उसके अंदर आप अकॉर्डिंगली डालेंगे कि आपके 8 पीरियड्स या 7 पीरियड्स जितने भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग उतने आपको कॉलम्स ऐड करने हैं। एक आप लंच ब्रेक का कॉलम ऐड करेंगे और एक जो रो होगी वो आपकी हेडिंग की होगी जहाँ पे आपके डेज आएंगे, और एक कॉलम स्टार्टिंग में आपका क्या आएगा, पीरियड्स का आएगा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। इस तरह से यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। जैसे आपकी डायरी में टाइम टेबल होता है वैसा आपको क्रिएट करना है यूजिंग द टेबल्स ऑप्शन। तो उसमें अगर आप क्या करते हो, मान लो किसी टाइम पे आप कोई रो ऐड करना भूल गए या आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो यू कैन मेक यूज ऑफ द इंसर्ट एंड डिलीट ऑप्शन जो आपने इसमें पढ़ा। सिमिलरली आप उसके अंदर टेबल को मूव भी करा सकते हो, कॉपी पेस्ट भी करा सकते हो, एंड आप सेल्स को स्प्लिट एंड मर्ज भी करा सकते हो। तो इस केस में ये आपको क्रिएट करना है टाइम टेबल। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज क्रिएट अ टेबल एज शोन बिलो बाय मर्जिंग सेल्स, राइट द स्टेप्स ऑल्सो। अब आपको एक ये टेबल क्रिएट करनी है। सबसे पहले देखिए कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। अब ये हमने स्प्लिट मर्ज किया हुआ है तो टोटल इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो 3 ही हो गए और 2 ही हो गए, 5 कॉलम्स हो गए आपके। 1 2 3 4 5 6 रोज एंड 5 कॉलम्स। पहले आप नॉर्मल टेबल बनाएंगे एंड देन आप स्प्लिट और मर्ज सेल्स के ऑप्शन को यूज करके यहाँ पे मर्जिंग करेंगे। इट इज़ वेरी इजी थिंग। प्रैक्टिकल
करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइप ऑफ चैप्टर्स। जब तक आप प्रैक्टिकल को करके नहीं देखोगे तो वो आपको चीज़, आपके स्किल्स जो हैं वो इतने डेवलप नहीं हो पाएंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू द प्रैक्टिकल फॉर दीज टाइप ऑफ चैप्टर्स regularly. Okay, complete all your assignments in the notebook.